Hallelujah. हालेलुया। Let us all be seated. कृपा करके सब बैठ जाएं। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। In this evening, let us turn to the Gospel of Matthew and chapter 10 and verse 16. मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 16 वचन की ओर इस शाम के वक्त हमारे धर्मशास्त्र को खोलेंगे। देखो, मैं तुम्हें बेड़ों के समान बेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बने। Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. So, I am thankful to God that God gave me this blessed opportunity that I can share the word of God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने यह धन्य अनुभव मुझे दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन से आप लोग के मध्य में कुछ बोल सकूं। So we are going to meditate mostly on this 16 verse and only the last portion. और आज हम परमेश्वर के वचन में इस 16वां वचन के आखिरी भाग को केवल ध्यान करेंगे। And harmless as dove. और कबूतर की नाई भोले बनो। So that I have been in this area only, and I brought up, and like this I have experienced in this area. और मैं भी इसी क्षेत्र से हूं और इसी क्षेत्र में मेरा पालन पोषण और मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूं। So that my father, he studied in a mission school, so that's why he always will tell that I am a Christian, and he used to teach us also that you have to tell that we are Christians. और मेरे पिताजी एक मिशन स्कूल में होने के कारण वो हमें हमेशा इस बात को कहते थे कि हम मसीही हैं और आप भी इस बात को बोलना चाहिए कि हम मसीही हैं। So that, but some people they were telling that we are not. We know that some other religions are there, but we doesn't believe that Christianity also a religion. और कई लोग इस प्रकार की बातों को बोलते हैं कि हाँ कई प्रकार के धर्म तो है लेकिन मसीहत जो है वो एक धर्म नहीं है। And when I was studying in the government school that time also that some people just they will only say so many things about Christianity. और जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय में मसीहों के संबंध में कई प्रकार की बातों को वे लोग आलोचना करते थे। But sometimes some teacher he will say yes, Christianity is the greatest religion of this world. और लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे शिक्षक लोग थे, अध्यापक लोग थे जो कहते थे कि संसार में मसीहत एक सबसे उच्च धर्म है। So many questions people used to ask. और ऐसे कई सवाल लोग हमसे पूछते थे। Sometimes some people they will ask that how much money you have taken. और लोग ऐसे सवाल भी पूछते थे कि आप मसीह बनने के लिए कितने पैसे को पाया है। And sometimes they will say so many other things also about Christianity. और मसीहों के बारे में, मसीहत के बारे में और भी कई प्रकार की बातें वे लोग बोलते। So that's why I'm thinking that still that such a thick darkness have been spread in this area. So that's why that many people still they are away from all the blessings. और मैं इस बात को सोचता हूं कि शायद वही घोर अंधकार वर्तमान भी इस क्षेत्र में छाया हुआ है, इसी कारण से कई लोग इस आशीष से वंचित हैं। So they are not knowing all the power and all the blessing and all the love of Lord Jesus Christ. वे लोग प्रभु यीशु मसीह के शक्ति को, आशीष को, उद्धार को नहीं जानते। So that as 2-3 things I want to tell that when I was studying, so one day that I did not study it, but that when I entered in the examination hall and then I was fearing, and question paper was so tough and no students, they were not even looking towards that question paper. और मेरे पढ़ाई के दरमियान, पढ़ाई के दिनों में मैंने अच्छे से पढ़ाई तो कुछ नहीं किया था। एग्जाम या परीक्षा आ गया और हम लोग जब परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश किए और जब प्रश्न पत्र में दिया गया, बहुत ही कठिन प्रश्न पत्र था और कोई भी विद्यार्थी उस कठिन प्रश्न पत्र की ओर देख भी नहीं पा रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था। So that was my first experience. I prayed, oh Lord Jesus, if you are a true God, please help me that I should be able to
to pass this examination. और उस समय में ये मेरा पहला अनुभव हुआ कि मैंने मेरे परमेश्वर के सम्मुख में मैंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अगर तू है तो मुझे इस परीक्षा में सफल होने के लिए मेरी सहायता कर. After like this 1 year passed and I did not prayed also, but when this education finished and I prayed, oh God, give me some job. और ऐसे ही वहां उस साल बीत गया और उसके बाद मैंने प्रार्थना नहीं किया और कुछ साल के बाद फिर मैंने परमेश्वर से दोबारा प्रार्थना की कि प्रभु मुझे एक नौकरी दे. So that poverty was there, so that's why that we were not able to get the job. Just I prayed and prayed, oh God, you can give me some good job. और गरीबी होने के कारण एक नौकरी नहीं था और मैंने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु एक नौकरी दे दे. And that wonderfully 1st November 1975 I got 2 jobs in one day. और नवंबर के पहले तारीख 1975 साल में एक ही दिन में 2 नौकरी मुझे मिला. One here in Delhi, other one in Ludhiana. एक लुधियाना में, दूसरा नई दिल्ली में. So I joined that job in Ludhiana. लुधियाना में रहने वाले उस नौकरी में मैं जुड़ गया. So like this, so that I was growing in the faith, how that Lord Jesus Christ is helping. He is a living God, and when people pray, He is helping them. और इस रीति से मैंने प्रभु से सहायता पाया और वो जीवित परमेश्वर है. जब कभी भी कोई उसे प्रार्थना करता है वो उसकी मदद करता है. So wherever people with the truthful heart, they pray, they search, and always that Lord Jesus Christ have appeared to them. और जब कभी भी सच्चे दिल से कोई भी किसी भी व्यक्ति ने प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना को सुन करके प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुआ. This testimony is from this area. I don't want to tell all the things, but that one person, as this is the tradition of this area, they used to respect everyone. Whatever calendar they will get from the shop, they will buy and they will put in their houses, and like this they used to pray or like this. यहीं पर की एक गवाही है. मैं ज्यादा व्याख्यान करना नहीं चाहता, किंतु यहाँ पर इस प्रकार की एक संस्कृति है कि कोई भी प्रकार का कैलेंडर किसी भी ईश्वर के संबंध में अगर उनको मिलता है, वो लोग उसको लेते हैं और अपने दीवार में उसे टांगते हैं. So like this one person, he was having many calendars, but he was not having any कैलेंडर अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. ऐसे ही एक व्यक्ति जिसके घर में अन्य कई प्रकार का कैलेंडर तो था, किंतु यीशु का कोई कैलेंडर उसके घर में नहीं था. One day night he gave this testimony to me. That's why I am telling. One day night, I think before midnight, he heard a voice that you should know me also. और वो भाई ने एक रात मुझको ये गवाही दिया, इसके लिए मैं आपके बीच में ये बांटता हूं. और उसने मुझे इस प्रकार कहा कि एक रात उसको एक आवाज सुनाई दी और कहा कि तू मुझे भी जानना चाहिए. I am Jesus. मैं यीशु हूं. So like this, from that day he started to search Jesus. और वो व्यक्ति उस दिन से यीशु को ढूंढने लगा. And he got the guidance in the dream, and I think some 20 kilometers away, he have seen a village in the dream and one house. He went there and he got a New Testament. और उसने उस प्रकार कई दर्शनों को देखा और एक दिन उसने दर्शन को देखा जो उसके स्थान से लगभग 20 किलोमीटर दूर था. और उस दर्शन के अनुसार जब वो उस घर में पहुंचा तो वहां पर उसे सबसे पहली बार एक नया नियम का किताब मिला. So that, and then always he was studying that New Testament. और उस दिन से लेकर के वो लगातार नए नियम को पढ़ने लगा. And today now everywhere that person, many years have passed, so that person, he was testifying about Jesus. और उसके पश्चात कई साल बीतने के बाद आज वो हर जगह में वो यीशु के बारे में गवाही देता है. So that see, as we have read this verse here, that Lord Jesus Christ, He want from us that we should become harmless as dove. और वो इस प्रकार कहता है, जैसे कि हमने वचन को पढ़ा, कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये चाहता है कि हम कबूतर के समान भोले बने. As yesterday we were hearing about Lord Jesus Christ, and He is a living God, and He is merciful God, and He is very helpful, and always He answers our prayers. और जैसे कि कल शाम के वक्त में हम लोगों ने इस बात को सुना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो दयालु ईश्वर है, वो प्रार्थना को सुनने वाला है, वो हमेशा हमारी सहायता करने वाला, चिंता करने वाला ईश्वर है.
But how that we can grow and receive all the blessings and we can please Him? लेकिन कैसे हम के मसीह में बढ़ते हुए उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? So that He wants that we should become harmless as dove. हमारा परमेश्वर हम में ये चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति कबूतर की नाई भोले बने. So that dove means that as birds, they are having two births. और हम लोग कबूतर के संबंध में देखने से पक्षी के कारण ये पक्षी के दो पंख होते हैं. No, two births. दो जन्म होता है. So same manner that this is the will of God for everyone, that we should know about these births and we should receive these births, and like this we should grow forward, and like this we should receive all the blessing whatsoever God is keeping for us. और इसी प्रकार हम भी इस दो जन्म के बारे में जानना चाहिए. इस दो जन्म को प्राप्त करते हुए उस आशीष को प्राप्त करते हुए हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. As birds, they are having two births. First, mother bird will lay the egg, and then secondly, that mother bird will hatch the egg. और हर पक्षी के जीव में दो जन्म होने का अर्थ, सबसे पहले माँ पक्षी अंडा देती है और उसके बाद उस अंडे के ऊपर बैठ करके उस अंडे से चूजे को निकलने के लिए उसमें बैठती है. So same manner for the spiritual people, that they need two births. उसी प्रकार आत्मिक लोगों के जीवन में दो जन्म चाहिए. One birth already took place, that we took birth from our parents. एक जन्म पहले से ही हमारे जीवन में हो चुका है और वो यह है कि हम हमारे माता पिता के द्वारा जन्मे हैं. So we all have got this one birth. हम सब ने इस एक जन्म को पाया है. And the second birth is from God. और ये दूसरा जन्म जो है वो हमें ईश्वर से पाना है. So if you understand about this birth, really your life will be successful. अगर आप सच में इस जन्म के संबंध में जानोगे, आपका जीवन धन्य सफल हो जाएगा. See, that person, he told me that testimony, that when he used to read the New Testament, wherever this word baptism will come, so at once he will stuck there and he was not able to read further. और ये व्यक्ति जो जिसने मुझे गवाही दिया, उसने कहा कि जब मैं धर्मशास्त्र को पढ़ता हूं, जहां कहीं भी बपतिस्मा के संबंध में या शब्द को मैं पढ़ता हूं, मैं उधर ही रुक जाता हूं और आगे नहीं पढ़ता हूं. So that he was thinking something is there in this word baptism. और वो इस प्रकार सोचने लगा कि इस बपतिस्मा जो शब्द है जो है, इसमें कुछ तो है. And he was searching here, then how I can know, who can teach me what is this baptism? और उसने ढूंढने लगा, खोजने लगा कि कौन मुझे बपतिस्मा के बारे में सिखाएगा, बताएगा. So from his village he went to the city, and like this he was guided, and one person, he was knowing something about Christianity, and he taught him about water baptism. और उसके बाद वो अपने गांव से बाहर शहर की ओर गया और वहां पर एक व्यक्ति से मुलाकात करता है जो बपतिस्मा के संबंध में जानता था, और उसने उसे बपतिस्मा के बारे में बताया. So that he was wondering that how I was not knowing anything about Jesus. See how Lord Jesus Christ have revealed to me, and he even taught me about water baptism also. और वो इस प्रकार सोच के अचंभा करने लगा, जो मैं यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानता, देखो किस रीति से मुझे यीशु के बारे में और बपतिस्मा के बारे में भी मुझे सिखाया. So that a person is can live in two ways. एक व्यक्ति दो रीति से जी सकता है. So when person is having this only one birth, so he will be called as a carnal person. जब एक व्यक्ति पहले जन्म को प्राप्त करते हुए जीता है, वो एक शारीरिक मनुष्य होकर के कहलाया जाता है. And then always he will be worried only the earthly things. और इस प्रकार के एक शारीरिक मनुष्य केवल पार्थिव जागतिक विषयों के बारे में ही चिंतित रहता है. And in Romans chapter 8 it is written that those who are in flesh or they live carnally, so they cannot please God. और रोमी की पत्री 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जो लोग शरीर के अनुसार जीते हैं, वे लोग ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. So that this is the good suggestion for you, that if you have not received this birth, which word of God says, so you please take care about this and
you can please God. और अगर आपने इस दूसरे जन्म जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, अगर आप इस अनुभूति में नहीं आए हैं तो आप इसके विषय में चिंता करते हुए इस अनुभव को प्राप्त कीजिए। See that Romans chapter 8 and verse 8 it is written. रोमी की पत्री अध्याय 8 वचन 8। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So then they that are in the flesh cannot please God. So those who are in the flesh means that in John the Gospel chapter 3 we are reading that incident. और जो लोग शारीरिक है इस विषय को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 30 अध्याय में इस घटना को देख पाते हैं। When Lord Jesus Christ was living, serving, so one great person, he was a religious leader of Jews. So he came to Lord Jesus Christ and he was praising Jesus and he was telling so many things about Jesus. और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे रहते हुए सेवा कर रहा था उस समय में एक धर्म गुरु जो यीशु को मानता था वो यीशु के बारे में कहता भी था। Lord Jesus Christ told him that that unless and until a person receive the new birth, so he cannot enter in the kingdom of God, means that he cannot understand the things of the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन उस धर्म गुरु को देखकर इस प्रकार कहा कि अगर एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, अर्थात परमेश्वर के राज्य के विषय में वो कुछ बोल नहीं सकता। So that religious leader, he was not able to understand what is this that new birth. और वो ये धर्म गुरु इस बात को नहीं समझ पाया ये नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या है। And Lord Jesus Christ taught him that a person should take birth by water and Holy Spirit. और उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिखा करके या बता करके दिया कि एक मनुष्य जल से और आत्मा से जन्म लेना चाहिए। So this birth is from God. ये जो जन्म है वो ईश्वर से होता है। Those who take the name of Jesus, जो या जितने यीशु के नाम लेते हैं, those who believe in Jesus, जितने यीशु को विश्वास करते हैं, so that and believing in him and confessing their sins and they take water baptism. और जितने उसको विश्वास करते हैं और उसको वे लोग पानी का बपतिस्मा को वे लोग लेते हैं। So why this is essential? और ये क्यों जरूरी है? Suppose that a person have an encounter with the heavenly Father or God. अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का सामना करता है, so what that person will do? वो व्यक्ति क्या करेगा? Seeing that oh heavenly Father or God have come down. और वो अचंभित करके कहेगा कि देखो स्वर्गीय परमेश्वर पिता वो ये उतर आया है। So that person may fall down at the feet of God. और वो व्यक्ति उसे देख करके अचंभित होते हुए उसके चरणों में गिर पड़ेगा। And he might have said, please bless me. और वो इस प्रकार कहेगा कि मुझे तू आशीष कर। Bless my family also. मेरे परिवार को आशीष कर। Please heal all my sicknesses. मेरी सारी बीमारी से मुझे चंगा कर। Please bless me that I should have some peace. मुझे आशीष कर कि मुझे शांति मिले। And please bless me that I may have some money also. मुझे आशीष कर कि मेरे पास धन संपत्ति हो। And that please bless me that I may have eternal life also. मुझे आशीष कर कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो। But you know what God will reply. किंतु क्या आप जानते हो कि ईश्वर क्या जवाब देगा? But you know that what God will reply to that person. उस व्यक्ति को ईश्वर क्या जवाब देगा? So my son, I only have created you. मेरे बेटे मैंने ही तुझे सृष्टि किया है। My daughter, I myself have created you. मेरी बेटी मैंने ही तुझे सृजा है। And I want that you should receive all the blessings. और मैं ये चाहता हूं कि तू सारी आशीषों को पाए। But see that all the blessings I have given to my beloved son Jesus Christ. कि तू ये सारी आशीष जो तुझे चाहिए वो सारी आशीष मैंने मेरे प्रिय पुत्र यीशु को दिया है। So if you want to share any blessing, you just join my son Jesus Christ. अगर तुझे कोई भी प्रकार की आशीष चाहिए तू मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पुत्र यीशु के साथ तू जुड़ जा, मिल जा। So that those who understand this truth, और जितने इस सच्चाई को समझ पाते हैं, and they are joining Lord Jesus Christ. वे सब यीशु में जुड़ जाते हैं।
See that God gave everything to Lord Jesus Christ. पिता परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के हाथ में दे दिया। So that's why many verses are there that through Jesus we are receiving all the blessings. और कई वचन इस बात को प्रमाण करता है कि यीशु मसीह ही के द्वारा हमें सारी आशीषें मिलता है। So those who are believing in Jesus and like this receiving him in their heart, so they wonderfully they are experiencing so many blessings after blessings. जितने भी यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अपने दिल में यीशु को जगह देते हैं, अद्भुत आश्चर्य रीति से आशीष के पीछे आशीष, बहुतायत की आशीष के वे लोग प्राप्त करते हैं। So see that Jesus, he, though you may not see him, but he is with you, he is in you, and he is helping you to live. यद्यपि आप उस यीशु मसीह को अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, तथापि वो यीशु आपके साथ है, वो आप में है, वो आपके पास है। See that as air you cannot see, but air is in you. You are without air, you cannot live. और जैसे आप हवा को देखते हो, वायु को देखते हो, वो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हवा आप में है। But see your soul always calling the name of Jesus. और आपके प्राण को देखो जो हमेशा यीशु को बुलाता रहता है। So when you take breath or air inside, जब आप श्वास लेते हो and when you release, और जब आपने श्वास छोड़ते हो, that become Yeshu. तो वो शब्द यीशु शब्द निकलता है। Now also you can experience. You are not hearing, you are not so far you might have not knowing this. So now you see that how that unknowingly that your soul is always calling Jesus, Yeshu, Yeshu, Yeshu. शायद आपने ये पहले कभी सुना नहीं होगा, या शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगा, लेकिन अनजाने में आप हमेशा श्वास छोड़ने और लेने के समय में जो शब्द आपके मुंह से या आपके शरीर से निकलता है, वो यीशु 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 शब्द है। So that your soul is calling Jesus, that's why you are living. और आपका प्राण यीशु यीशु पुकारता है, यही कारण है कि आप जीवित हो। So your soul unknowingly calling Jesus, that's why you are living. अज्ञानता से ही आपका प्राण यीशु को पुकारता है, और यही कारण है कि आप जीवित भी हो। But he don't want to give only this much blessing. He is having many blessings. किंतु वो इतना ही केवल आशीष देना नहीं चाहता, और भी बहुतायत की आशीष वो आपको देना चाहता है। So that's why those who join Jesus, इसी के लिए जितने यीशु से जुड़ जाते हैं, they because that all the blessings have been given to Jesus by Heavenly Father. पिता परमेश्वर ने सारी आशीषों का हक यीशु को दिया है। So that there are steps that we can join Jesus. और यीशु किसी के साथ जुड़ने के लिए कई कदमें हैं। So that Lord Jesus Christ, he died on the cross. प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरा। So same manner that for all of us that the cross is there means that we have to believe in his cross, and we have to take our cross and we have to confess our sins. और इसी कारण से हर एक मनुष्य के लिए वो क्रूस है। हम उस क्रूस को विश्वास करना और अपना क्रूस को उठा करके हम विश्वास के साथ उसके पीछे हो लेना। So sin means some burdens will be there in your life. पाप कहने से हमारे जीवन में एक बोझ के रूप में दिखाई देगा, and a human being cannot carry that burden. और ये पाप का बोझ एक साधारण मनुष्य उठा नहीं सकता। So that's why Jesus is calling you, come and you give your burden to me, you confess to me, and I will give you rest. इसी के लिए पाप के बोझ के दबे तले हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ और तुम्हारे पाप के बोझ को मेरे पर डाल दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। So like this you carry a cross, or you are sharing a experience with Jesus. और इस रीति से आप उस क्रूस को उठाते हो और यीशु मसीह के अनुभव को आप बांटते हो। And that next experience, Lord Jesus Christ died on the cross and buried. और दूसरा एक अनुभव जो है वो यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरा और गाड़ा गया। So that is the experience that when a person take water baptism. और ये वो अनुभूति हमारे जीवन में एक ऐसा अनुभव है जब हम लोग पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब वो दिखता है। So that when a person take the name of Jesus and confess sins, and like this he go in the water and take a dip or like this, so then he is sharing one experience of Lord Jesus Christ. जब एक व्यक्ति अपने गुनाहों को, अपने पापों को कबूल करके यीशु मसीह को विश्वास करता है और पानी का बपतिस्मा डूब करके जब लेता है, तो वो यह सुसमाचार का प्रचार करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया।
Lord Jesus Christ, he was buried, and a third day he rose again. हमारा प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया और देखो तीसरे दिन जी उठा. So that's why on Sunday that people used to worship. That is the day that Lord Jesus Christ rose again from among the dead. और तीसरे दिन अर्थात रविवार के दिन जब हम लोग आराधना करने का दिन है, उसी दिन यीशु मसीह मरण के मध्य में से वो जी उठा. So those who take water baptism with the true heart, confessing their sins, so one experience is coming from heaven. They are receiving Holy Spirit or heavenly power. जो लोग सच्चे हृदय से यीशु मसीह को विश्वास करते हुए पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उन लोगों के लिए स्वर्ग से एक शक्ति, एक सामर्थ्य उतरता है और एक वो दूसरा अनुभव है. Those who call with the true heart, as this brother testified, so those who call with the true heart, with the true thirst and hunger, so they are receiving this experience from heaven. जिस प्रकार आज आपने भाई की गवाही को सुना, जो सच्चे हृदय से प्यास और भूख के साथ ईश्वर को ढूंढते हैं, पुकारते हैं, उनके ऊपर ये पवित्र आत्मा का ये अनुभव, एक शक्ति उतर करके आता है, उन्हें प्राप्त होता है. So like this, those who are having these three experiences, so they are the experiences of Jesus also, and like this they are joining Lord Jesus Christ. और इस रीति से जो ये तीन अनुभव को प्राप्त करते हैं, इस तीन अनुभव के साथ वे यीशु के साथ जुड़ जाते हैं. So here in this area that political parties are there, one person will leave the one party and join the other party. यहाँ पर राजनीतिक लोगों को हम लोग देखने पाते हैं जो एक पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष से जा जुड़ता है. They are leaving one party and joining another party. एक पक्ष को छोड़ते हैं और दूसरों के साथ जा मिलते हैं. So like this, those who are joining Lord Jesus Christ, उसी प्रकार जितने लोग यीशु से मिलते हैं, so then blessings is started to come in their life. उसके जीवन में आशीष आने लगता है. So that all the blessings, like this Heavenly Father have promised, those who will join my son, all the blessings will come upon them. और जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने वायदा किया है कि जितने प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, वे सारे उन आशीषों को पाएंगे. So wherever a person like this receiving Jesus, so then they say that now our burden is so light. Now we are very happy, we are rejoicing. जितने भी लोग जहां कहीं भी इस यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, वे लोग इस प्रकार की गवाही देते हैं कि हमारा बोझ हल्का हो गया, अभी हम कितने आनंद और खुशी से जी रहे हैं. All our sicknesses have gone. हमारी सारी बीमारी चला गया. Now we are not worried for anything. If anything is there, we are praying and we are receiving. अभी हम लोग किसी बात से चिंतित नहीं है और जब कभी भी कोई प्रकार की बात होता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है. So like this, see that sometime I see people how they are suffering. So sometime I used to tell them that if you come to Jesus, see that how that all things will change. और कई लोग कई प्रकार की बातों में पीड़ित होने के समय में जब मैं इस बात को उन्हें बता करके देता हूँ, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने से, बने रहने से जीवन बदल जाता है और सारी आशीष हमको मिलता है. All the problem, curse, everything go away from them. और उनके जीवन से सारी समस्याएं, उनका श्राप, अभिशाप सब निकल जाता है. Any family that they are allowing Jesus in their lives, so like this, that family become very blessed. और जब कोई परिवार यीशु के साथ जुड़ जाता है, उसका परिवार धन्य हो जाता है, आशीषित हो जाता है. So like this, here and there, wherever people like this, opening their heart for Jesus, really the things, wonderful things, very blessed things used to take place. और इधर उधर जहां कहीं भी जो भी कोई परिवार यीशु मसीह को अपना दिल देता है, यीशु के साथ जुड़ जाता है, अद्भुत आश्चर्य रीति से कई आशीषों को वे लोग प्राप्त करते हैं. See, that's why that as bird they are having two births. So this is the will of Lord Jesus Christ, that we should learn from these birds, and like this we should have this second birth. और जिस प्रकार पक्षी में दो जन्म हम देखते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम में से हर एक लोग अपने आत्मिक जीवन में इस दूसरे जन्म को अनुभव प्राप्त करना चाहिए. How that these birds after mother bird laying hatching the eggs, how that young ones come out and when they grow and how they fly and they enjoy.
और हम देखते हैं कि ये माँ पक्षी जब उस अंडे को फोड़ती है, उस समय में उसमें से जब बच्चे निकलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वे लोग भी उड़ते हैं और इस प्रकार वे लोग आनंदित होते हैं। So when they fly, so how blessed experience these birds they are having. और ये पक्षी बच्चे उड़ने के समय में कितना धन्य अनुभव ये बच्चे लोग प्राप्त करते हैं। Same manner that if we take the new birth with this water baptism, so you can see that how things will change. और इसी प्रकार जब हम लोग पानी के बपतिस्मा के द्वारा एक नया जन्म को प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन में भी देखो कैसे सारी बातें बदल जाएगा। John the Gospel chapter 3, we are reading that Lord Jesus Christ have explained the things. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का विवरण किया। So that when that person, he was not understanding that what is this new birth. ये व्यक्ति जो धर्म गुरु था इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि नया जन्म क्या है। So then Lord Jesus Christ told that that a person who is not taking new birth, he is flesh. और यीशु मसीह ने उसको बात समझा करके दिया कि अगर एक व्यक्ति नए जन्म को नहीं लेता है तो वो शारीरिक है। Read John the Gospel chapter 3 and we are reading in verse 6. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 6 में हम इस बात को देखने पाते हैं। So that which is born of the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। See that two words, flesh and spirit. यहाँ पर 2 शब्द हम देखते हैं, एक शरीर और दूसरा आत्मा। But you see that there are two fathers in this world. और इस शब्द में या इस वचन में हम 2 पिता को भी देखने पाते हैं। So in Genesis chapter 6 we are reading that human being was given the name as flesh. और उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय में हम इस बात को देखने पाते हैं, मनुष्य को एक नाम दिया, वो है शरीर। And Adam also was given this name. और आदम को भी ये नाम दिया गया। So in this world, one group of people, they are from Adam. और इस संसार में एक झुंड के लोग आदम से हैं। Those who are not having the second birth, so they are related with Adam. जितने भी लोग दूसरे जन्म को प्राप्त नहीं किया वे सब आदम से जुड़े हुए हैं। So that because that Adam was given this name, and later in Genesis 6 clearly we say that how that God gave this name to the human beings. और हम लोग देखने पाते हैं कि ये नाम आदम को दिया गया और हम उससे जुड़े होने के कारण ये सारे मनुष्य को ये नाम दिया गया। And 1 Corinthians in chapter 15 and verse 45 and verse 47, there also we are seeing this. पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 45-47 वचन में भी हम इस बात को देखने पाते हैं। So that it is written about 2 Adams. वहां पर 2 आदम के संबंध में हम देखने पाते हैं। First Adam. पहला आदम, From that first Adam and Eve only all the people of this world they took birth. उस पहले आदम और हव्वा के द्वारा ही आज सारे मानव जाति जो इस पृथ्वी पर है दिखाई देते हैं। So God gave these 5 fingers in the hands, so that's why all are having 5 fingers in the hand. और परमेश्वर ने उन लोगों को उनके हाथ में 5 उंगलियां दिया, यही कारण है आज सारे मनुष्य के हाथों में 5 उंगलियां हैं। As God created them, so all are having that similar this creation. और जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा जो आदि मनुष्य थे उनको सृष्टि किया, उसी प्रकार के सृष्टि में आज हम सब दिखाई दे रहे हैं। How many bones they were having, so you are also having same bone. उन लोग के लिए जितना हड्डियों को परमेश्वर ने बना करके दिया उतना ही हड्डी आज भी हमारे शरीर में है। So that all the people they come to this world through them only. सारे मानव जाति या सारे मनुष्य उनसे ही हुए हैं। But that Adam he became a fallen person. किंतु वो आदम एक गिरा हुआ मनुष्य बन गया। So the blessings which God gave, he lost all the blessings. जिसके द्वारा जो सारी आशीषें परमेश्वर ने आदम को दिया था नष्ट कर बैठा। So that's why all the people of this world like this, because of Adam,
that all are like this. और इसी कारण से आदम के गिरावट के साथ सारे मनुष्य एक गिरे हुए स्थिति में ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। As Adam beginning he was pleasing God, but later on he did not please God, he was grieving God. So that's why that all the people, all the human beings in this world, they are not able to please God. जिस प्रकार आदम प्रारंभ में तो ईश्वर को प्रसन्न करते हुए जी रहा था, लेकिन बाद में वो गिर गया और परमेश्वर को प्रसन्न करने ना पाया, वैसे ही आज सारे मनुष्य को देखने से वे लोग ईश्वर को प्रसन्न कर नहीं पाते। So this is the reason that that this second birth have been written, and it is very essential for all the human beings to please God. यही कारण है कि दूसरा जन्म के संबंध में धर्मशास्त्र कहता है और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर एक मनुष्य को दूसरा जन्म लेना जरूरी है। By first Adam we got this shape of physical shape. इस पहले आदम के द्वारा हमें ये शारीरिक शरीर मिला है। But see, second Adam, which is Lord Jesus Christ, he came and he have pleased God. और दूसरा आदम जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो इस जगत में आकर के परमेश्वर को प्रसन्न करके उसने एक जीवन जिया। Whatsoever first Adam lost, all the things Lord Jesus Christ have brought back. जितना भी आशीषों को पहले आदम ने अपने पाप के कारण नष्ट कर दिया, यीशु मसीह ने उन सारी बातों को दोबारा प्राप्त किया। So that's why that Adam brought death and Lord Jesus Christ have became a quickening spirit. और इसी कारण से उस पहले आदम के द्वारा मृत्यु हमें आया, लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग जिलाए गए, ये जिलाने वाली आत्मा दिया गया। So clearly you can see in 1 Corinthians in chapter 15 and verse 45. इस बात को पहले कोरिन्थी 15वां अध्याय उसके 45वें वचन में हम लोग स्पष्ट रीति से देखने पाते हैं। And so it is written, the first man Adam was made a living soul, and the last Adam who made a quickening spirit. 45 वचन इस प्रकार कहता है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। First Adam, he lived a life when he have gone from this world. पहला आदम एक जीवन को जिया, संसार को छोड़ के चला गया। But all people, those who took birth and died, and those who are living or in the future, if they will take birth, so all because of Adam, that this curse and death, spiritual death is coming into them. ये पहला आदम जिया और मर गया, लेकिन उसके पीछे जितने भी अभी तक जन्म लिए हैं और जन्म लेने वाले हैं, वे सब इस पहले आदम के गिरावट के कारण पापी और श्रापित हैं। So see that to save the human beings from this curse and all the things, Lord Jesus Christ came to this world. लेकिन सारे मनुष्य जाति के जीवन में ये श्राप और पाप से छुटकारा देने के निमित्त हमारा प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर के जगत में आया। So that's why his name is second Adam or last Adam. इसी कारण से यीशु मसीह का नाम दूसरा आदम ने तो अंतिम आदम कहा गया है। So that's why in this world two families are there. इस संसार में इस रीति से दो परिवार हम देखने पाते Only हैं, two families. केवल दो ही परिवार। One first Adam family and second is second Adam or Lord Jesus Christ family. एक परिवार जो पहले आदम से हुआ, पहले आदम का परिवार, और दूसरा परिवार दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह का परिवार। So if you come to the family of Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के परिवार में आते हो, so because all the things Heavenly Father have gave to Lord Jesus Christ. क्योंकि सब कुछ सारी बातों का अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, So those who come in the family, जितने भी इस यीशु के परिवार में जुड़ते हैं, शामिल होते हैं, because of the birth, they are having this right, birthright, that they will share all the blessings of that family. चूंकि वे लोग इस जन्म में दोबारा जन्म लिया या इस परिवार के साथ जुड़ा है, इसी के लिए वर्तमान उन सारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए उनके पास जन्म सिद्ध अधिकार है। Suppose one farmer having 100 bigha land, so he got 4 sons, so that all the 4 sons, because they have taken birth in that family, automatically they will get 25 bigha each that land.
मान लो कि एक परिवार जो किसान परिवार है और उसके घर में 4 बच्चे जन्म लिए हैं और इस पिता के पास अगर 100 बीघा जगह है तो ये 4 बच्चे उस परिवार में जन्म लेने के कारण हर एक बच्चे को 25 बीघा जमीन मिलेगा। So, water baptism and you receive Holy Spirit baptism, like this, you are sharing all the blessings of Jesus. इसी प्रकार बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे आशीषों को हमारे परमेश्वर से नहीं तो यीशु मसीह से हम प्राप्त करेंगे। So that's why after taking water baptism, people say, now we are enjoying, we are worshipping God. इसी कारण से बपतिस्मा लेने के बाद लोग इस बात को कहते हैं कि अब हमने उद्धार पाया, अब हम लोग इस परमेश्वर के आशीष में आनंदित है, हम उसमें मग्न हैं। No, sin is not working in our life. हमारे जीवन में वर्तमान पाप काम नहीं कर रहा। So to the demons, if we say go, so they are going. और जब हम कहते हैं कि कोई शैतान को कि जा, तो वो जाता है। So like from where they got this blessing? ये सारी आशीष उनको कहां से मिला? This is the family blessings. और ये तो पारिवारिक आशीष हैं। So that's why God is telling everyone, why you are suffering? You come and take birth in my son's family. और इसी कारण से परमेश्वर कहता है कि तू क्यों दुख उठाता है, मेरे पुत्र के परिवार में शामिल हो जा, ये सारे आशीषों को तू प्राप्त कर ले। So like this, see, you will have very, very blessed life. और इस रीति से तू एक बहुत ही धन्य धन्य जीवन जीने पाएगा। So Lord Jesus Christ, how that though he lived like a poor person, but he was having all the blessings. यद्यपि एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में है, दीन दरिद्र व्यक्ति है, किंतु वो सारी आशीषों को पाता है। There was no curse. उनके जीवन में कोई श्राप नहीं। Everywhere wherever he was going, blessings were there. जहां कहीं वो जाता है, आशीष उसके पीछे हो लेती है। He went in the marriage blessings. Something was lacking, Lord Jesus Christ was there. Then everything became plenty. अगर कोई विवाह में अगर प्रभु यीशु मसीह जाए और वहां पर किसी बात की घटी हो, देखो यीशु वहां होने के कारण वहां पर भी सब कुछ समृद्धि में। He went somewhere and see that one dead boy, they were carrying the dead body. Lord Jesus Christ was there. That dead person arise, he started to live. और यीशु मसीह एक दिन एक नगर की ओर जा रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग एक मरे हुए लड़के को या शव को उठा करके जा रहे थे। यीशु वहां पर होने के कारण यीशु ने उसको जिंदा किया और वहां पर उसे आशीष किया। So truly, with the experience also you can understand this. If you are not in the family of Jesus, or you have not taken the second birth by water and by Holy Spirit, that you are far away from all the blessings, and really your life may be very, very burdened. और इस रीति से कई कहानियों को, कई घटनाओं को धर्मशास्त्र में आप लोग देख सकते हो कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वे लोग सब आशीषों को प्राप्त किए हैं। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया और पवित्र आत्मा नहीं पाया तो आप इन आशीषों से, इस परिवार से आप बहुत ही दूर हो और आप बोझ से दबे हुए हो। Suppose a father is there and he is having so much loan, he have to pay 10 lakh and he got 4 children. So then children they will not get. Sons they will not get anything. Just they will get, each one have to share that loan. अगर एक पिता बहुत ही ज्यादा 10 लाख के लगभग अगर ऋणी है तो उसके बच्चों को कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक उनके बच्चों को भी ये ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। All will come, they will say, you have to pay your father's loan. Please give us, everyone you give 2,50,000 rupees to us. और उसके पिता के चले जाने के बाद उसके पिता के रहते उनके बच्चों के पास आकर के सब लोग मांगेंगे कि तुम लोग उसके बच्चे हो, इस कारण से जो ऋण आपके पिता ने लिया है आप लोग भुगतान कीजिए। So that this is the Adam's curse. Adam's all these problems, all the sins. This is Adam's and you are carrying. और इसी रीति से ये आदम का ही श्राप है, ये पाप है जो आज हम लोग उठाते फिर रहे हैं। This is the burden of Adam. ये आदम का बोझ। So that's why that God loved and he sent Lord Jesus Christ. How he was crying to everyone, you all are heavy laden and burdened, come to me, I will give you rest. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हुए बोझ के तले दबे हुए लोगों को देखते हुए कहता है, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Some people faithfully they pray and they take the name of Jesus. कई लोग विश्वास योग्य रीति से प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम को पुकारते हैं।
So they pray, they sing song like this. They are worshipping Jesus. वे लोग प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। But that till they take water baptism, that true blessings are not working in their life. किंतु जब तक वे सही रीति से बपतिस्मा नहीं लेते, एक वास्तविक आनंद, एक आशीष वे लोग अनुभव नहीं कर पाते। The person who was not knowing anything, nobody have taught about Lord Jesus Christ or gospel, see that because he was a true worshipper. So that how Lord Jesus Christ, he taught everything. और वो व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता था और वो एक सच्चा भक्त था, वो उसकी आराधना करता था, यही कारण यीशु ने उसको सब कुछ सिखा करके दिया। Lord Jesus Christ only revealed to him that he should take water baptism. यीशु मसीह ने उस बात प्रकट करके दिया कि तुझे पानी का बपतिस्मा लेना। So those who have not taken so far this water baptism, really that so many blessings are waiting for you. The day you take water baptism, all the blessings will fall on you. इसी कारण से जितनों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, वे लोग पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आशीष आपके लिए इंतजार कर रही है। जिस घड़ी, जिस दिन आप पानी का बपतिस्मा लोगे, ये सारी आशीष आपको प्राप्त होगा। So when you will take water baptism, जिस समय में आप पानी का बपतिस्मा and लोगे receive Holy Spirit, और पवित्र आत्मा पाओगे, so spiritually you will receive some feathers to fly. और आपको उस समय में पंख मिलेगा कि आप उड़ सको। One day one person, he have seen a dream. एक दिन एक व्यक्ति ने एक स्वप्न देखा। So that in the skies that one bird is flying. उसने देखा कि आकाश में पक्षी उड़ रहा है। And then he came to me, brother, I have seen one vision. Please tell me what is the meaning. और उसने आकर के मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई, मैंने एक स्वप्न देखा, मुझे उसका अर्थ बता दीजिए। So I told again you pray. I also do not know what is this. So you pray. And again second time he have seen the vision. One bird was flying, but not having beak, having the human face. और मैंने उससे कहा कि आप दोबारा प्रार्थना करके इसका अर्थ परमेश्वर से पूछ लीजिए। और वो जाकर के दोबारा प्रार्थना किया और उसने दोबारा एक स्वप्न को देखा और उसने देखा कि एक पक्षी के समान कुछ उड़ रहा है, लेकिन उसका चोंच नहीं है। नजदीक से देखने से वो एक मनुष्य है जो उड़ रहा है। The person for whom he was praying, always that person face was there. और जिस व्यक्ति के लिए हमेशा प्रार्थना किया करता था, उसी व्यक्ति का चेहरा को उस उड़ते हुए पक्षी में उसने देखा। That person have taken water baptism. और उस व्यक्ति ने पानी का बपतिस्मा ले लिया। No, he have taken water baptism. उसने पानी का बपतिस्मा लिया। And he have taken, he have received the Holy Spirit experience also. पानी का बपतिस्मा भी लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी पाया। So God revealed to him that, see that person, because he got this experience, now he is like a bird flying in the sky. और उसने, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दर्शन दिखा करके यही बताना चाहा कि वो व्यक्ति ने पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। यही कारण है कि देखो वर्तमान पक्षी के समान उड़ रहा है। So you can worship, you can worship in spirit and truth. और इस रीति से आप आत्मा और सच्चाई में अब उसकी आराधना कर सकते हो। In this sinful world, you can have a good life, holy life. इस पापमय जगत में एक पवित्र जीवन, एक शुद्ध जीवन जी सकोगे। For all the sins you can say, if you have taken this water baptism and Holy Spirit baptism, you can say to all the sins, no. और पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के द्वारा इस संसार में आप सारे पापों को ना करके कहने पाओगे। So you will have very blessed life. You will fly in the sky. एक धन्य अनुभव आपको मिलेगा, आप आकाश में उड़ पाओगे। So Lord Jesus Christ is also there in heavenly places. हमारा प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग के स्थान में है। So time to time Lord Jesus Christ will call you, my son, my daughter, you come here and have some experience and blessings and go. और समय समय पर प्रभु यीशु मसीह भी आकर किस प्रकार कहेगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मेरे पास आओ और इस अनुभव को तू प्राप्त कर। So in that vision what he was seeing, उस दर्शन में उसने क्या देखा? so that after some time, that sometimes some feathers, they were coming out of that body and falling. और उसने देखा कि जब ये दर्शन में ये उड़ रहा था तो उसके कुछ पंख जो है उसके शरीर से निकल करके गिरने लगे। So then God only revealed this vision that when a person have taken water baptism, but if he is not careful, sometime that this experience can
go down. Sometimes these experience can leave that person. और उस समय में परमेश्वर ने उसको इस दर्शन के द्वारा यह बता करके दिया कि पानी के बपतिस्मा लेने के बावजूद भी अगर वो सावधानी के साथ जीवन नहीं जीता है तो कई अनुभव को वो नष्ट कर सकता है. A bird always he will be careful where he is sitting, where he is going, everything that they will be careful. एक पक्षी हमेशा इस बात में बड़ी सावधान रहती है कि वो कहां पर बैठती है और कहां पर उड़ती है. Night time it will not fall down on the ground. और वो रात के समय में कहीं पर भी ना गिरे. It should not set on the ground. और वो रात के समय में जमीन में नहीं बैठता. So that you can understand. Oh yes, cat can come and sometimes that catch that bird. और अगर वो इस प्रकार रात में कहीं जमीन में अगर वो बैठ जाए तो कोई बिल्ली आएगा उसको धर पकोच लेगा. So that's why, dear children of God, that God have loved us with the everlasting love. परमेश्वर की प्रिय लोगों, परमेश्वर ने सनातन प्रेम से हमें प्रेम किया है. But how he can allow all the blessings that come in your life. किंतु वो कैसे सारी आशीषों को हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति देगा. So that's why this is the way that God have appointed. यही वो रास्ता है, मार्ग है जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, ठहराया है. That you should take water baptism and like this you should fulfill the will of God. पानी का बपतिस्मा लेते हुए इस रीति से आप ईश्वर की मर्जी पूरा करना चाहिए. So one person, he was not knowing about this, and he also was not a Christian, and he heard about water baptism and he was praying, oh God, teach me what is this water baptism. और एक व्यक्ति जो गैर मसीही था, नहीं जानता था कि ये सारी अनुभव किया है, उसने प्रभु को पाया और प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये बपतिस्मा के सारी अनुभवों को तू मुझे सिखा. So what he was seeing on the earth, people were taking water baptism. उसने देखा कि सारे मनुष्य पृथ्वी पर पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं. And there was a window in the heaven. और उसने देखा कि स्वर्ग में एक खिड़की है. When one person was taking water baptism, और जब एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेता है, so then one angel was coming down. वहां से एक दूत उतरता है. And that God was commanding, now this person have taken water, now you take care of this person. और परमेश्वर कहता है कि देखो इस व्यक्ति ने पानी का बपतिस्मा लिया, इसलिए हे दूत अब से लेकर के तो इस व्यक्ति की रक्षा करना, उसकी चिंता करना. Demon should not do anything in his life. ताकि उसके जीवन में कोई शैतान कुछ न कर बैठे. Everywhere, wherever he go and come, you take care of this person. जहां कहीं भी ये व्यक्ति जाए आए, हमेशा इसके साथ रहना, इसकी रक्षा करना. So like this, many people that when they ask, God is revealing to them, and like this, that they are understanding all the truth. और इस प्रकार कई लोग जब कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको ये सारी सच्चाई बता करके देता है. So this is the will of God, that all should become like bird flying in the sky. इसी के लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक मनुष्य उड़ते पक्षी के समान होना चाहिए. As Lord Jesus Christ have told that be ye as harmless as dove. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि तुम लोग कबूतर के समान भोले बनो. So when you take water baptism and receive Holy Spirit, जब आप बपतिस्मा को लेते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हो, you would receive such a blessed life that you will become harmless, or you will become holy person. आप इस प्रकार एक धन्य अनुभव को प्राप्त करते हो जहां पर आप एक भोले व्यक्ति होकर के बदल जाते हो. So in the kingdom of God, all those who will be harmless, they will have the privilege to live there. और जितने भी भोले लोग हैं, वे लोग कोई परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए एक सौभाग्य मिले. So this is the will of God, that all should grow spiritually and become harmless as dove. और इसी कारण से परमेश्वर ये चाहता है हर एक लोग कबूतर के समान भोले बनते हुए आत्मिक जीवन में बढ़े. But where is the foundation? किंतु इसका नींव कहाँ है? So that right baptism, if you take, that is the foundation. इसका नींव सही बपतिस्मा लेने से है. So if you surrender tonight and ask from God that, oh God, guide me, help me, so really things will change. और अगर आप परमेश्वर से कहोगे कि हे परमेश्वर तू मुझे अगुवाई कर सलाह दे, तब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा. This night itself will become a historical night for you. आपके लिए आज की रात एक ऐतिहासिक रात बन जाएगा. So you will always remember, oh yes, this was the 8th October and 2021. I understood about Jesus. और आप
इस बात को हमेशा याद रखो कि 8 अक्टूबर 2021 में मैं ईश्वर को समझ पाया। I decided to follow Jesus. मैं यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया I decided that I will take water और baptism. मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं पानी का बपतिस्मा लूंगा। Oh, all my burden had gone. मेरे सारा बोझ चला गया, All my sorrows have left me. मेरा सारा दुख मुझे छोड़ गया, Many problems were there. All problems were मेरी solved. सारी समस्या था वो सबका समाधान हुआ। So I was not having any light. I was only having everywhere darkness. और मेरे जीवन में कोई ज्योति नहीं था, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में अंधकार ही अंधकार था। I was not knowing what to do. मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। But when I understood about Jesus, किंतु जब मैंने यीशु को समझा, and when I understood about water baptism, जब मैंने पानी के बपतिस्मा को जाना, oh yes, everything became very, very blessed. और मेरे जीवन में सब कुछ धन्य हो गया, ज्योति हो गया। So may God bless with these words. परमेश्वर सारे वचनों से आपको आशीष करे। So you can see that those who have taken water baptism and received Holy Spirit, how that they all have changed and they are very happy. They are having very blessed life. आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाया, वे लोग का जीवन बदल गया, वे बस सब लोग बहुत ही खुश हैं। So by this birth, new birth, you will be able to please God. इस नए जन्म से ही आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Whatever work you will do, God will be happy with you. जो भी कुछ आप करोगे, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। But without birth, whatever you do, that become a sin only. किंतु इस नए जन्म के बगैर जो भी कुछ आप करोगे वो पाप गिना जाएगा। In this evening, may God bless us with these words. इस शाम के वक्त में परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष करे And guide us, teach us that we all may be able to please our God. और परमेश्वर हमको अगुवाई करे, सिखाए कि हम सब ईश्वर को प्रसन्न करने पाए। नया जन्म पानी से जन्म और आत्मा से जन्म, नया जन्म पानी से जन्म और आत्मा से जन्म, फसलों के रंग से देता सभी को, फसलों के रंग से देता सभी को, तुझको वही देता है। नया जन्म पानी से जन्म और आत्मा से जन्म, नया जन्म पानी से जन्म और आत्मा से जन्म, फसलों के रंग से देता सभी को, फसलों के रंग से देता सभी को, तुझको वही देता है। ईश्वर इंसान को क्या देता है, शर्मा शांति शिफा देता है। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। ईश्वर इंसान को क्या देता है, क्षमा शांति शिफा देता आइए हम सब है। खड़े हो जाएं। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। ईश्वर इंसान को क्या देता है, क्षमा शांति शिफा देता है। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। इंसान बदले में क्या देता है, शुक्र तारीफ सना देता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Truly we are blessed if we truly partake of all the blessings that the Lord has made provision for us through the births that God has kept for us to experience. हम सच में धन्य हैं अगर हम लोग इस दूसरे जन्म के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम लोग उसको प्राप्त करने से Oh, we will no more be called as flesh. We will have the second birth, to be born again, together with being born of water in water baptism, born of the Spirit to the Holy Spirit. अगर हम लोग पानी से और आत्मा के द्वारा जन्म लेने से इस दूसरे जन्म को प्राप्त करने से कदापि हम शारीरिक नहीं We कहलाए have जाएंगे heard the good news tonight. आज की रात आपने एक शुभ संदेश को सुना All these blessings come to us through the Lord Jesus ये Christ. सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे पास आया है Yes, we are all born of that first Adam. हाँ हम सब उस पहले आदम से जन्मे हैं But if you want these blessings, किंतु अगर आपको ये आशीषें चाहिए you have to be born through the last Adam, the Lord Jesus Christ. आपको इस आखिरी आदम यीशु मसीह से भी जन्म लेना है Yes, the Lord wants to give you all these heavenly blessings, spiritual blessings. परमेश्वर आपको ये सारे स्वर्गीय आशीषें आत्मिक आशीषें देना चाहता है Oh, yes, we want to experience the Lord Jesus Christ transforming us in our heart, in our spirit. हाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में हमारे आत्मा में एक परिवर्तन लाना चाहता है You have not been, if you have not repented of your sins, believe Jesus took your sins on the cross and repent of your sins, accepting the Lord Jesus tonight as your Lord and Savior. अगर अभी तक आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं किए हैं उद्धार नहीं पाए हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए उसको ग्रहण करते हुए अपने पाप की क्षमा को प्राप्त Surrender कीजिए to obey the Lord in the truth of water baptism, and the blessings of the obedience of Christ will be yours. और उस समय में जब आप पानी का बपतिस्मा लोगोगे और उसकी आज्ञा को मानोगे तो ये सारी आशीषें आपका हो जाएगा Believe, and He will baptize you with the Holy Spirit. He will make you experience the quickening Spirit in your life. उसको विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करो तो वो आपको जिलाएगा Tonight, the Lord is moving in our midst with all these blessings. आज की रात इन सारे आशीषों के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में चल फिर रहा है We need this two birth. We have already experienced the first birth. We need this second birth. हम लोग ये पहले जन्म को प्राप्त किए हैं अवश्य है कि हम इस दूसरे जन्म को भी पाएं Right now, you can surrender yourself to the Lord Jesus, believing and accepting this gospel. इस सुसमाचार को विश्वास करते हुए ग्रहण करते हुए अभी आप यीशु मसीह को विश्वास कीजिए All His blessings are coming down upon us tonight. आज की रात ये सारी आशीषें आपके ऊपर आ रही हैं Hallelujah. Surrender yourself into the hands of the Lord Jesus. यीशु के हाथों पे अपने आप को समर्पण करो Oh, this is the birthright. ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार If you're born in the family of अगर God, आप ईश्वर के परिवार में जन्म लोगे through the last Adam, the Lord Jesus इस आखिरी Christ, आदम यीशु मसीह के द्वारा all the heavenly blessings that belong to Him belong to you वो too. सारी स्वर्गीय आशीष जो यीशु मसीह का है आपका हो जाएगा Believe, surrender, and receive it tonight. विश्वास करो समर्पण करो प्राप्त करो It's coming upon you right वो अभी now. ही आपके ऊपर आ रहा Let's है rejoice in यीशु Jesus. मसीह में मगन हो जाओ Rejoice in Christ Jesus. यीशु मसीह में मगन हो Do जाओ not keep quiet आज की tonight. रात चुप नहीं रहना This is your ये birthright. आपका जन्म अधिकार This है is your ये birthright. आपका जन्म अधिकार है Hallelujah. Lord, in the name of Jesus. Oh, bless Jesus. Hallelujah. Lord, bless with His birth. Hallelujah. And the Spirit in the name of Jesus. Jesus. Born out of the Spirit in Jesus.
Hallelujah. 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 Oh, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Jesus. Amen. Hallelujah. 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 What happened to those who were born of the first Adam? जितने लोग उस पहले आदम से जन्म लिए उनका क्या होता है? The end of all flesh is come before me, God said. और हर एक मनुष्य का अंत मेरे सामने होता है करके परमेश्वर कहता है। Because they sinned and they did not repent of their sins. क्योंकि वे लोगों ने पाप किया और अपने पाप से पश्चाताप नहीं किया। But the blessings of the last Adam comes upon us through the Lord Jesus Christ. किंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अंतिम आदम है जब आशीष हमारे पास आता है, That is eternal life through the blood of Jesus. When you believe on the cross, He took your sins and you join Jesus by repenting and confessing your sins to Him. अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में जो आपके लिए आपके सारे पापों को उठाया, विश्वास करते हो तो अनंत जीवन हमें प्राप्त होता है। Those who are destroyed because they lived in their sins and went on sinning, oh, yeah, they face eternal destruction. और जो लोग पाप और लगातार पाप करते रहते हैं, एक दिन नित्य विनाश को प्राप्त करेंगे। This was spoken about them in the days of Noah, those who were destroyed in the floods. और परमेश्वर ने ये बात को नूह के दिनों में बता करके दिया, जो लोग उस समय में अनाज्ञाकारी संतान थे। But through the Lord Jesus Christ, किंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा we through the last Adam can receive eternal life. We are saved from eternal damnation from the lake of fire. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है और उस नित्य विनाश से हम बच निकलते हैं। We can be delivered from hell and we can receive eternal life in heaven with the Lord Jesus Christ. हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नित्य राज में दिखाई देंगे और नित्य नरक के उस जंगल से बच निकलेंगे। That which is born after the Spirit is Spirit, being born of water in the water baptism, more of the life will fill you. और जितना अधिक आप इस पानी के बपतिस्मा को लेकर के आत्मा में अधिक बढ़ते चले जाओगे, उतना ही अधिक आपके जीवन में जीवन बढ़ते As जाएगा। you believe and surrender yourself to obey Jesus, He will baptize you with abundance of life through the Holy और Spirit. जितने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, उनको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा बहुतायत के जीवन से भर देगा। Through the last Adam, the blessings of that eternal life is abundantly flowing in our midst right now. अंतिम आदम के द्वारा उस अनंत जीवन की बहुतायत हमारे मध्य में बह रहा है। Curse is removed from us. श्राप हमारे अंदर से निकाल दिया गया। Eternal death and the punishments of hell and the lake of fire are removed from आग us. का झील, नित्य नरक और उसकी सजा हमारे जीवन से देखो निकाल दिया गया। Right now, partake of those blessings freely, abundantly. और अभी वर्तमान उस सारे बहुतायत की आशीष को बिना मूल्य से प्राप्त Oh, कीजिए। believe and receive of that life. उस विश्वास के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करो। We are going to possess that life abundantly and we are going to
be with Jesus in his kingdom. हम लोग उससे जीवन को बहुत ऐसे प्राप्त करते हुए, अधिकार करते हुए नित्य जीवन में यीशु के साथ होंगे। Let's get ready for the kingdom of उस God. परमेश्वर के राज्य के लिए आओ, तैयार हो जाए, Be filled with the Spirit. आत्मा में भर जाइए, Speak in tongues. Receive the abundance of life. अन्य अन्य भाषा में बातें करो, बहुतायत के जीवन को प्राप्त करो। Amen. Hallelujah. Tidakala. Takalaka. Tikalaka. Cheese. Cheese. Hallelujah, Lord. Tikalaka. Cheese. 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 Kakata. Kalakata. Palamakalaka. Through the blood of Jesus that was shed, as you experience it in your heart when you repent of your sins, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया गया, जब आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो, प्राप्त करने से no more curse can cling to you or to your family. कोई श्राप आपके जीवन में नहीं, आपके परिवार में रहेगा। All curses are removed at the cross of Calvary. कलवरी क्रूस पे सारे श्राप अभिशाप निकाल दिया गया। Oh, you claim the blood of Jesus, the birthright you have through the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को दावा करो, यही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। That curse of the hereditary sickness is removed from you right now. ये जो श्राप रूपी बीमारी जो पीढ़ी से पीढ़ी आपके परिवार में दिखाई दे रहा है, कलवरी क्रूस के द्वारा निकाल दिया गया। The curse of the death in your family is removed right now through the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये मृत्यु आपके परिवार से निकाल दिया गया। The curse of all the sorcery and witchcraft is removed from your family right now in the blood of Jesus. सारे जादू टोना की शक्ति जो आपके घर परिवार में है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकाल दिया गया। This is our right through the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये हमारा अधिकार है। Rejoice in Jesus. यीशु मसीह में मगन हो जा। Amen.
As you obey the word of God in baptism, as you obey His word every day and do His will, और जब आप पानी के बपतिस्मा के लिए आज्ञा मानते हो और हर एक दिन उसकी मर्जी करने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानते हो, all His blessings come upon you. सारी आशीष आपके ऊपर आएगा. He makes you willing to obey and He makes you obedient. He does it both. और वो आपको आज्ञा मानने के लिए और वो आपके जीवन में हर एक प्रकार की आज्ञाओं को मानने के लिए वो आपको मदद Oh, करेगा. but when you hear, you must choose that you want to obey Jesus. आप चुनने के समय में इस बात को चुनना चाहिए कि आप यीशु की आज्ञा मानना चाहते हो. Then when Jesus comes in, उस समय जब यीशु आप में आएगा He will continue to make you willing. और उस समय में निरंतर वो आपको आज्ञा मानने के लिए मदद He will करेगा. make you to obey His word. उसके वचनों को पालन करने के लिए वो आपकी सहायता Every करेगा. day will be a new day of blessings. उस समय में आपका हर एक दिन एक आशीष का दिन होगा. Let Jesus come in. यीशु आपके हृदय में जीवन में Choose आने to दे. obey यीशु Jesus. यीशु को मानने के लिए He's चुन doing a लो. new work in you वो today. आज भी आपके जीवन में कार्य करना चाहता है. Today onwards you are going to obey Him and please Him alone. आज से आप उसकी आज्ञा मानो और केवल उसी को प्रसन्न करो. You're not going to live in the flesh and disobey Him और anymore. आप शरीर में ना रहते हुए और उसकी अनाज्ञाकारी ना होंगे. Oh, Jesus is coming into your life to make you willing and obedient. यीशु मसीह आपके जीवन में देखो आ रहा है कि आपको आज्ञाकारी बनाए और उसकी मर्जी पूरा करने वाला बनाए. Giving you the blessings of the Holy Spirit to the obedient. और आज्ञा मानने वालों के लिए देखो पवित्र आत्मा दिया गया है. Those who have not received the Holy Spirit और tonight. कोई पवित्र आत्मा को धोखा न दे. Tonight is baptizing you with the Holy देखो आज Spirit. की रात में परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से The Holy- अभिषेक कर रहा है. Holy Spirit is coming upon you right अभी now. आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है. His anointing is coming upon आपके ऊपर you. अभिषेक उतर रहा है. Speak in अन्य tongues. भाषा में बातें करो. Amen. The word of God says, open your mouth wide, I will fill it. परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा. I have brought you out of your bondage, of the bondage of sins or bondage of Egypt. मैंने तुझे इस मिस्र देश के उस बंधन से, पाप के बंधन से छुड़ा लाया है. All you need is believe and thank God for these blessings of these good birds. All the birds is given you through the gospel as you believe what Jesus did for you through His death and resurrection. और आपको बस केवल इतना ही करना है कि यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा जो दूसरा जन्म आपको मिला है उसमें केवल परमेश्वर में मग्न होते हुए इसको धन्यवाद करते रहना है. No sin can prevail in your body. Nothing of the works of the flesh, nothing of the fleshly characteristics can work in you through when you are filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक में आप भरने से कोई भी शरीर और शरीर का कोई भी काम
काम, कोई भी पाप आपके ऊपर प्रबल ना होगा। When that anointing flows in you, जब अभिषेक आपके जीवन में बहेगा, all the earthly blessings come through the anointing उस too. अभिषेक के द्वारा ये सारे सांसारिक आशीष से भी आपको प्राप्त होगा। Are you lacking anything financially? क्या आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो? Are you not having a proper blessing in your job? क्या आपके नौकरी में सही आशीष नहीं है? Are you lacking in any way in this earthly life? इस सांसारिक जीवन में क्या किसी बात की घटी आप में है? When you seek the blessings of the kingdom of God, as you seek the anointing, all these things are going to come upon you through the anointing. जब आप परमेश्वर के राज्य को खोज करोगे, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में परिपूर्ण हो जाओगे, तो इस अभिषेक के द्वारा ही ये सारी आशीषें भी आपको मिलेगा। Oh, no sin can enter you. Any sin will be overcome by the power of the Holy Spirit. कोई भी पाप आप में प्रवेश ना करेगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा कोई भी पाप आपके ऊपर प्रबल ना You होगा। can overcome the flesh. You can overcome the fleshly thoughts. You can overcome the fleshly characteristics. Right now, the power is coming upon you. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आप शरीर के ऊपर, शारीरिक चिंताओं के ऊपर, शारीरिक सारे दुर्बलता के ऊपर अभिषेक के द्वारा अभी आप जा पाओगे। Then the anointing will make you ready for His और kingdom. तब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके राज्य के लिए आपको तैयार करेगा। Then the earthly blessings are coming upon तब you. सारे संसारिक आशीषें भी आपको मिलेगा। Receive the anointing. अभिषेक को प्राप्त करो। Open your mouth and receive it. मुंह खोल करके अभिषेक को पाओ। Amen. Sing. आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से 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 आत्मा से आजादी है।
Amen. Yes, truly all His heavenly blessings have come upon us through these births that we have experienced through the last Adam, Jesus Christ our Lord. हाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जो दूसरे जन्म के द्वारा मिलने वाले सारी आशीषें सच में परमेश्वर ने आज हमारे बीच में उतार करके दिया। Oh, for the blessings of being born again, as we repented of our sins, believing Him as our Lord and Savior, the blessings of obedience through the truth of water baptism, as that we may do the will of God, as Jesus did the will of God, for the blessings of the baptism of the Holy Spirit, to be born of the Spirit and to be raised to heavenly places, in order that we may also live and reign with Him now. The Lord, for all these blessings He has given us through all these births, shall we praise और God. इस जन्म के द्वारा परमेश्वर ने जो हमें ये सारी आशीषों को दिया है कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा उसके कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा पाप की क्षमा हमें देते हुए उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरा और उसके अनुग्रह के द्वारा उसकी इच्छा के ऊपर इच्छा करते हुए उसकी मर्जी में बढ़ते हुए उसके साथ नित्य राज में दिखाई देने के लिए जो परमेश्वर ने हमें इस दूसरे जन्म के द्वारा आशीष दिया है, इसके लिए परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद करें। Hallelujah. Praise the Lord. 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 Thereby, as the last Adam is the quickening spirit, He died and rose again. He is there in the kingdom of God, the right hand of the Father. If we will continue to grow in Him in all these aspects, yielding to Him, willing and obedient, living to please Him, living in the Spirit, one day He is going to come again. He is going to receive us unto Himself, and we are going to be seen eternally in the eternal kingdom. Shall we praise हाँ, ये God? दूसरा आदम, ये आखिरी आदम जो जिलाने वाली आत्मा होकर के हमारे बीच में आया, यदि हम उसको विश्वास करते हुए उसकी माने और उसमें बढ़ते चले जाए, उसमें जुड़े रहे और उसकी मर्जी करते हुए उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार अगर हम लोग बढ़ते रहेंगे, तो ये आदम जो मर करके जी उठा और आज पिता के दाहिनी ओर जा बैठा है, उसने ये वायदा किया है कि एक बार मैं दोबारा आऊंगा और जब वो आएगा जो उसकी मर्जी करते हुए दिखाई देंगे, जो उसकी आत्मिकता में आगे बढ़ते हुए पाए जाएंगे, वे भी उसके साथ सदा सर्वदा की उसके राज्य में होंगे। इसके लिए उसका धन्यवाद करें। Hallelujah. Praise the Lord. 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 Let us pray. प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हमारा दूसरा दिन सम्मेलन के भी तूने आशीष किया शुरू से लेकर अब तक प्रभु जी। तेरा आत्मा हमारे बीच मंडल आया, इसलिए हम शुक्रगुजार से हम तारीफ करते हैं। खुदा बाप, आज तूने प्रभु जी लाद आकाशवाणी हमें सुनाई दिया, प्रभु जी लाद सुनाया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जिस प्रकार हम जन्म लेना चाहिए, उस जन्म के द्वारा किस प्रकार प्रभु जी आने वाला बड़ा प्रभु जी विनाश हम लोग बच सकते हैं करके प्रभु जी तूने प्रकट करके दिया। प्रभु जी लाद सुना हुआ प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी नाश नहीं होना चाहिए प्रभु जी, केवल इस पंडल के नीचे नहीं, और जितने लोग प्रभु जी दूर दूर से इस आवाज को सुना है, उनके जीवन में भी प्रभु जी परिवर्तन होने के लिए खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन में प्रभु जी हर एक परिवर्तन का सामर्थ्य है प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में प्रभु जी सामर्थ्य काम करना चाहिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, पहला आदम के द्वारा इस संसार में प्रभु जी मृत्यु प्रवेश किया, लेकिन प्रभु जी दूसरा आदम प्रभु जी यीशु मसीह के द्वारा उस मृत्यु को तूने दूर हटाकर हम सबको प्रभु जी अनंत जीवन तूने दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। उस अनंत जीवन में प्रभु जी हम राज्य करने के लिए हमें बुलाया प्रभु, हमें से कोई भी नाश होने बिना इस वचन को मानकर, आज्ञा मानकर प्रभु जी इस वचन के अनुसार चलने के लिए हर एक लोगों को मदद कर। आज रात को प्रभु जितने लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, उनके लिए भी प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु जी, उनके साथ तो बातें कर, एक मन में प्रभु जी परिवर्तन होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी पश्चाताप करके अपने पाप को कबूल करके बपतिस्मा लेने के लिए एक द्वार तूने खोल कर दिया प्रभु जी। इस द्वार बंद होने से पहले वे सब लोग बपतिस्मा लेकर तेरे नित्य राज्य के लिए तैयार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन पेश करने के लिए तेरे दास को भी विशेष अनुग्रह और अभिषेक तूने दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे आदर मान महिमा तुझे देते हैं, हम सबको तू पवित्र करके तेरे जल्द आमद के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until
Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah.